Morning all students, welcome back in our online session for maths. I am Naina Gide, your maths teacher. Today we are going to start our third lesson in subject maths. Our third lesson, indices and cube root. Indices and cube root. Then let's start our session. In this session, we are taking quick revision of laws of indices. Laws of indices. In previous standard, you learn laws of indices. So today we are going to take quick revision on laws of indices. Indices प्रीवियस स्टैंडर्ड में आपका हुआ है, लॉज आपने उसका अध्ययन किया है, वही हमें थोड़ा सा क्विक रिवाइज में देखना है. देन लेट्स स्टार्ट. लॉज ऑफ इंडाइसेस. You all know the product of 2 into 2 into 2. 3 times 2 means you can express as a 2 raised to 3. You all know about this. Second example, 3 into 3 into 3 into 3. 3 4 times. So you can express as a 3 raised to 4. 3 raised to 4. Here 2 is the base and 3 is the index. In second example, 3 is the base and 4 is index. So you write 2 raised to 3 on second example, or 3 raised to 4 is the index form of the numbers. This is the index form of the number. This is base and this is index. This is base and this is index. All these are index are integer numbers. To show square of number, any number, the index is written as a 2. To show square of any number, for example, 3 square means 3 raised to 2. Index is a 2. 6 square, 6 is a base, 2 is a index. So to show square, you can write index as a 2. To show cube, you can write index as a 3. To show cube of a number, the index is written as a 3. तो अगर किसी नंबर का क्यूब होगा तो हम 3 से उसका इंडेक्स दिखाते हैं. किसी नंबर का स्क्वायर होगा तो हम उस नंबर के इंडेक्स 2 से दर्शाते हैं. ओके. फॉर एग्जांपल, x raised to 2 means x square. Here 2 is a index. X cube means x is a base and 3 is a index. For 2, we read as a square. For 3 index, we read as a cube. Then what about the square root of number shown as? To show square of number, our index is we written as a 2. Then what about the square root of number shown as? Square root of number, the index written as a 1 upon 2. 1 upon 2. This is index. For example, square root of x. To show in index form, you can write x raised to 1 upon 2. You can show x raised to 1 upon 2. Here you can write here. For example, x raised to x square root of x, then you can write in the index form x raised to 1 upon 2. 1 upon 2. Here x is a base and 1 upon 2 is a index. 1 upon 2 is a index. ओके. तो इसका हम नेक्स्ट सेशन में स्क्वायर रूट या जो रैशनल फॉर्म में आएगा उसका हम नेक्स्ट सेशन में देखने वाले हैं.
अब हम सिर्फ लॉज ऑफ इंडाइसेस उसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जो आपको वापस लिखकर लर्न करना है। लॉज ऑफ इंडाइसेस और एक्सपोनेंट यू कैन कॉल एज अ एक्सपोनेंट, ये आपका ऑलरेडी प्रीवियस स्टैंडर्ड में हुआ है, यू हैव टू लर्न इन दिस स्टैंडर्ड आल्सो। A, B are real numbers and greater than 0, and A and N are real numbers. A and N are also real numbers, means they are integer plus or minus, or you can say is greater than 0, always greater than 0. A and B always greater than 0. Okay, and not equal to 1. जो हम A और B एज्यूम करने हैं वो ग्रेटर देन 0 चाहिए और नॉट इक्वल टू 1 चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट लॉ ऑफ इंडाइसेस, a raised to m into a raised to n, a raised to m into a raised to n। अभी आपने देखा कि a is a base and m is a index, a is a base and n is a index, so here a raised to m into a raised to n, यहाँ पे जो बेस है दोनों का बेस समान दिख रहा है आपको, इक्वल है, कॉम, या here a base is a, again here base is a। नाउ टू सी इंडेक्स, इंडेक्स क्या है देखते हैं हम लोग। इन फर्स्ट रेस टू एम मीन्स इंडेक्स एम है, यहाँ पे इंडेक्स एन है, तो इसका लॉ ऑफ इंडेक्सेस के अनुसार जब बेस समान होगा यू हैव टू ऐड इंडेक्स, आपको इंडेक्स का एडिशन करना है, बेस एक ही बार लिखना है। सो इज इक्वल टू ए रेस टू एम प्लस एन, ए रेस टू एम प्लस एन। समझ आया? मतलब जब बेस समान है और दोनों का मल्टीप्लिकेशन है दोनों नंबर्स के, तो उनका बेस एक ही बार लिखकर आपको इंडेक्स का एडिशन करना है। सेकंड लॉ, ए रेस टू माइनस एम, ए रेस टू माइनस एम इज इक्वल टू, यहाँ पे जो इंडेक्स है माइनस है, इसको अगर प्लस करना है यू कैन राइट हियर 1 अपॉन ए रेस टू, अगर आपको एग्जांपल में 1 अपॉन ए रेस टू एम और एक्स रेस टू 2 समथिंग दिया होगा, अगर आपको अपॉन में से निकालना है तो यू कैन राइट ए रेस टू माइनस एम, एक्स रेस टू माइनस 2 एक्सेट्रा। सेकंड लॉ समझ में आया कि ए रेस टू माइनस एम होगा, पॉजिटिव यू कैन राइट 1 अपॉन ए रेस टू एम। इंडेक्स को अगर पॉजिटिव लिखना है तो अपन 1 अपॉन के फॉर्म में आपको लिखना है। थर्ड लॉ, ए रेस टू एम अपॉन ए रेस टू एन मीन्स ए रेस टू एम डिवाइडेड बाय ए रेस टू एन, ए रेस टू एम डिवाइडेड बाय ए रेस टू एन, अपॉन मीन्स डिवाइडेड बाय, वापस बेस समान है और डिवीजन करना है तो हमें इंडेक्स को माइनस करना है बेस एक की बार लिखकर, ए रेस टू एम माइनस एन, ए रेस टू एम माइनस एन। ओके, you can write 1 upon a raised to m minus n। फोर्थ लॉ, a raised to m ब्रैकेट n, a raised to m ब्रैकेट n मीन्स यहाँ पे जो बेस a है और उसका इंडेक्स m है, वापस ब्रैकेट का इंडेक्स n है, तो दोनों इंडेक्स को आपको मल्टीप्लाई करना है, m इंटू एन एम एन, सो यू कैन राइट इज इक्वल टू ए रेस टू एम एन, ए रेस टू एम एन। फिर a इंटू बी ब्रैकेट n रेस टू n, अगर a इंटू बी है ब्रैकेट किया है, ब्रैकेट का रेस टू n है, तो जो इंडेक्स n है वो दोनों को होगा, you can write a raised to n into b raised to n। ओके, ब्रैकेट के बाहर जो इंडेक्स दिया है, ब्रैकेट के अंदर जो भी होंगे नंबर्स या जो भी बेस होगा उस सभी को वही इंडेक्स रहेगा। 6, a raised to 0 ऑलवेज इक्वल टू 1, किसी भी नंबर का रेस टू 0 इंडेक्स अगर 0 होगा
ए रेस टू 0 इज इक्वल टू ऑलवेज 1। किसी भी नंबर का इंडेक्स यदि 0 है तो यू कैन डायरेक्टली राइट डाउन द वैल्यू इज इक्वल टू 1। फॉर एग्जाम्पल 60 raised to 0 is equal to 1. Value of this number is 1. 100 raised to 0 is equal to again 1. Okay. 27 raised to 0 is equal to 1. कोई भी नंबर होगा अगर उसका इंडेक्स 0 है तो वैल्यू 1 होगी। नेक्स्ट, इफ a raised to m is equal to a raised to n, then m is equal to n. यदि गिवन वैल्यू में ए रेस टू एम इज इक्वल टू ए रेस टू एन होगा, दोनों अगर नंबर्स के इंडेक्स अगर डिफरेंट है लेकिन वैल्यू अगर इक्वल आई तो देन द इंडेक्स शुड बी इक्वल। एम इज इक्वल टू एन। इफ ए रेस टू एन इज इक्वल टू बी रेस टू एन, ए नॉट इक्वल टू बी, देन एन इज इक्वल टू 0। एन इज इक्वल टू 0। ए रेस टू एन है और बी इज इक्वल टू एन है, दोनों की इंडेक्स इक्वल है, देन द वैल्यू ऑफ इंडेक्स दिस एन शुड बी 0। मीन्स ए रेस टू 0 1 इज इक्वल टू बी रेस टू 0 1, 1 इज इक्वल टू 1। अभी इस लॉ पे कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे, सॉल्व एग्जाम्पल्स। फर्स्ट लॉ था क्या हमारा, ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन इज इक्वल टू ए रेस टू एम प्लस एन। मतलब हमें दोनों इंडेक्स का प्लस करना था जब दोनों नंबर्स में इंटू का साइन है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है और बेस समान है, बेस इज इक्वल। फॉर एग्जाम्पल 2 raised to 5 into 2 raised to 3. Here two numbers are given. This is base 2 and index is 5 into means multiplication, base 2 into base and index 3. So add both index 2 raised to 5 plus 3 is equal to 2 raised to 8. मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है, you can add step 2 raised to 5 plus 3. आप स्टेप को इस तरह से ऐड करके कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है क्योंकि आपका हुआ है लास्ट प्रीवियस स्टैंडर्ड में, सॉरी। तो यहाँ पे आप इसके पहले एक स्टेप लिख सकते हैं 2 raised to 2 raised to 5 प्लस, पेन से लिखना थोड़ा पीपीटी पे मुश्किल होता है, प्लस 3 मीन्स 2 बेस 5 प्लस 3, दिस इज 5। ये स्टेप ऐड करके देन इज इक्वल टू 2 raised to 8 लिखो, मैंने डायरेक्टली लिखा है। ओके, सेकंड ए रेस टू एम डिवाइडेड बाय ए रेस टू एन इज इक्वल टू ए रेस टू एम माइनस एन। ए रेस टू एम माइनस एन, बेस इक्वल है लेकिन डिवीजन अगर होगी तो हमें इंडेक्स को माइनस करना है। ए 5 रेस टू 7 फॉर एग्जांपल डिवाइडेड बाय 5 रेस टू 3, 7 माइनस 3, 5 रेस टू 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 रेस टू 4। ए रेस टू एम ब्रैकेट एन इज इक्वल टू ए रेस टू एम इंटू एन, दोनों इंडेक्स को मल्टीप्लिकेशन करना है हमें। टेक फॉर एग्जाम्पल 10 रेस टू 3 इंटू 7 ब्रैकेट रेस टू 7, so 3 into 7 3 into 7 21, 10 raised to 21. A raised to 1 is equal to a, so 17 raised to 1 is equal to 17. For example 50 raised to 1 is equal to 50. A raised to 0 is equal to 1. अभी मैंने देखा था आपने एग्जाम्पल, किसी भी नंबर का इंडेक्स अगर 0 है तो वैल्यू 1 आएगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया है यहाँ पे 34 raised to 0 is equal to 1. a अपॉन b रेस टू m इज इक्वल टू a रेस टू m अपॉन b रेस टू m। सेपरेट कर लो दोनों का इंडेक्स, ब्रैकेट को निकाल लो। फॉर एग्जांपल 5 अपॉन 6 रेस टू 2, तो आप एक स्टेप बढ़ा दो यहाँ पे 5 रेस टू 2 अपॉन 6 रेस टू 2। 5 रेस टू 2 मीन्स 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36। एक स्टेप यहाँ आप हर एक स्टेप में आप एक जो स्टेप मैंने डायरेक्ट लिखा है आप एक स्टेप लिखकर उसके बाद डायरेक्ट आंसर लिखो। तो क्या करना है आपको, पहले 5 रेस टू 2 अपॉन 6 रेस टू 2 इज इक्वल टू 25 अपॉन 30।
5 square 25, 6 square 36. A raised to minus m is equal to 1 upon a raised to m. For example, 9 raised to minus 2 is equal to 1 upon 81. यहाँ पे भी मैंने डायरेक्ट लिखा है. You can write first 9 raised to minus 2. So write first 1 upon 9 square. माइनस था, अपॉन पे आने पे के बाद क्या हो गया, वो साइन चेंज हो गया. ठीक है, तो बहुत ही बड़ा हो गया. यहाँ पे वापस रब कर रही हूँ. कैन अंडरस्टैंड दिस? So in this way 1 upon 9 raised to plus 2, 9 raised to plus 2. यहाँ पे मैं 2 लिखती हूँ. यहाँ पे जो आप इंडेक्स लिखते हैं ना, वो उसके हेड पे आना चाहिए, मतलब ऊपर आना चाहिए. 9 raised to 1 upon 2. 9 square 81. So your answer 1 upon 81. 1 upon 81. 1 upon 81. Okay. And last example, law a raised to x upon y. Their index is in which form? 1 upon form. Means 1 upon n form. Okay. So is equal to square root a raised to x, a raised to x, उसका जो y रूट में है. फॉर एग्जाम्पल 49 raised to 1 upon 2. 49 raised to 1 upon 2 means स्क्वेयर रूट ऑफ 49. जो 1 अपॉन 2 में जो नंबर्स है वही उसका रूट होता है. यहाँ पे 2 है, सो राइट हेयर स्क्वेयर रूट. 3 होगा क्यूब रूट, 4 होगा 4 रूट, एक्सेट्रा. 49 स्क्वेयर रूट इज इक्वल टू 49 का स्क्वेयर रूट कितना है? 7 है. 49 का स्क्वेयर रूट कितना है? 7 है. सो इन लास्ट एग्जाम्पल you see a raised to x upon y form. A raised to x upon y form. Example 49 raised to 1 upon 2. 49 raised to 1 upon 2 is equal to in under root 49 square root 49 is equal to 7. In this example index is a rational number of the form 1 upon n form. Means last example में जो इंडेक्स था वो रैशनल नंबर में था. उसके पहले जो एक लॉज हमने देखे उसके सभी के एग्जाम्पल रैशनल फॉर्म में नहीं थे. ओके, जो इंटीजर्स हमें दिए थे स्क्वायर रेस टू 3 रेस टू 4 एक्सेट्रा. यहाँ पे जो लास्ट एग्जाम्पल में हमने देखा कि जो उसका इंडेक्स था तो इस तरह से एक्स रेस टू वाई मीन्स 1 अपॉन एन के फॉर्म में है. 1 अपॉन एन के फॉर्म मीन्स such as 1 upon 2, 1 upon 3, 1 upon 5, dash dash and so on, 1 upon n term, 1 upon n form. Means किसी नंबर का इंडेक्स अगर रैशनल फॉर्म में होगा तो वो स्क्वायर रूट क्यूब रूट में आता है. डिपेंड्स, आपको स्क्वायर रूट दिया है, क्यूब रूट दिया है या फोर्थ रूट दिया है. ओके, रूट का साइन आएगा वहाँ पे तो उस नंबर के लिए. और सपोज 49 रेस टू 1 अपॉन 2. 49 रेस टू 1 अपॉन 2. तो इसको कैसे रीड करना है? 1 अपॉन एन फॉर्म. अगर रैशनल नंबर फॉर्म में किसी नंबर का इंडेक्स होगा तो उसको रीड करके कैसे आपको लिखना है, ये सब हम हमारे अगले सेशन में देखेंगे. तो आज आपको सिर्फ लॉज लर्न करने हैं, नोटबुक में राइट करने लिखने हैं एंड एग्जांपल्स भी आपके मन से कुछ एग्जांपल्स और सॉल्व करने हैं.